IIMT College of Engineering welcomes you all in this Celebrum enhancing session which could really going to help you in deciding your career path and will show you light for developing plans for different stages for startup within site provided by our today's speaker, that is Dr. Sanjay Pachori sir, who is a President and Innovation Ambassador of IIMT College of Engineering. Let me give you a brief introduction about our speaker for today. Dr. Sanjay Pachori is working as Professor and Dean R&D IIMT College of Engineering, Greater Noida. He is obtained PGDITM, APG MSc Computer Science, MTech Computer Science, MBA IT, MCP, MCSA, MCSE and PhD Computer Science and Engineering throughout first class from graduation onwards. He has possessed more than 22 years of experience in academic research in India. He was a member of Academic Council, Faculty Council, Board of Studies of IMS Unison University, Dehradun. He also serves as an editor of Pragyan, that is a journal for IT, December 2013 issue, as well as member of Editorial Board, International Advisory Board, review for several international journals from OIA, USA, Houston, USA, Australia, Ethiopia, Saudi Arabia, Iraq, and etc. Hello. He is also guiding several scholars for PhD work. He has also evaluated number of PhD theses for several universities like Bodh Gaya, Bihar, JNU, Jodhpur, and conducted Viva for award of degree. He has attended, presented, published more than 35 presentations and papers in different national and international seminars, conferences, and journals. His primary research interests are in computer networks, cloud computing, and network security. He has visited various universities in our country. Now I request Director Sir to have some word. Good afternoon to one and all the students. Dr. Naveen, HOD MCA, Dr. Sanjay Pachori, former Dean R&D, and now Chief Doctor of the group. So today it is an activity of IIC which makes you aware about the startups. We are thankful to Dr. Pachori who has taken this initiative to make you aware because he has already worked a lot in various aspects of R&D, research and development in the group. Dear students, it's time to produce jobs, and the only way to make this, you have to become an entrepreneur. And to become an entrepreneur, you can make a startup, you can start up. Because in most of the organizations now, the trend has changed. You, the student of MCA, already a graduate, you are mature students, you understand. So that way, you should know if you are talking about a startup, what are the different stages of it, how to go, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जब तक आप अवेयर नहीं होते तो यू थिंक कि यार आई हैव एन आइडिया बट आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग. इसमें फाइनेंस का भी हर्डल होता ही नहीं है. When you have thought of, you have come up with an idea, you have some innovative ideas, तो जो भी people generally think यार पैसे तो है नहीं, चलाएंगे कहाँ से, चलेगा कैसे. तो ये सब चीज़ें सोचने का नहीं है क्योंकि भाई स्टार्टिंगली आपके पेरेंट्स ने कहा कि भाई डिग्री करनी है, उसके बाद अच्छी जॉब लेनी है, वो सारी चीज़ें ठीक है, that is one way. But when you are in the organization, now the trend has changed.
अगर आपका बैंक, इफ यू हैव ए बैंक टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि आपका MCA कोर्स जो है ना, दैट इज ए ब्लेंड ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस एंड आल्सो मैथमेटिक्स। करिकुलम में भी आपका जो है मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। So you should think of it. Whatever the idea come into your mind, there are number of applications, number of problems. जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उतनी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज जनरेट होंगे। एंड प्रॉब्लम एग्जिस्ट, प्रॉब्लम कभी खत्म होती नहीं, तो इनोवेटिव आइडिया भी आपको आते रहने चाहिए। यू शुड स्टडी। आप इतने सारी चीज़ों को देखते रहे, आपने कभी सोचा नहीं होगा कि भाई उबर, ओला एक रूम में बैठ के पूरी दुनिया में अपना कारोबार चला रहे हैं। अर्लियर दिस इज जस्ट एन आइडिया, मतलब आइडिया जनरेट हुआ तभी तो हुआ। ओयो वाले हैं, ये सब दे आर जस्ट एन आइडिया। और आईटी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। दैट्स व्हाई पीपल आर कमिंग टू दिस वे। सो I will not take much of your time. You should be motivated. I was just to give you a boost that you should start thinking in this direction. So अभी पीछे एक वो हुआ था, एक छोटी सी स्टोरी भी आपको सुना देता हूँ कि MSME का प्रोग्राम हम कर रहे थे, तो वो स्टोरी सुनाई थी, तो आपको भी सुना दें, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। दिस इज बाई चांस। एक स्टोरी है कि वन ऑफ द किंग डिक्लेयर्ड कि भाई जो नदी थी जिसके अंदर बहुत सारे जहरीले सांप और मगरमच्छ, बिच्छू ये सब रहते थे, तो उसने कहा कि भाई जो इस नदी को इस वहाँ से वहाँ तक पार कर जाएगा वो आई विल मैरी माई डॉटर टू हिम, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूँगा और राजपाट सा उसको मिल जाएगा। तो सब लोग परेशान कि भाई बचेंगे तो शादी होगी, यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है पार करने का। लोग इकट्ठे हो गए, किनारे पे खड़े थे सारे, तो अचानक एक जो है लड़का पार करता हुआ दिखाई दिया और उस किनारे पे पहुँच गया। तो उस किनारे पे पहुँचने के बाद सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, अरे यार तो राजा बन गया, बहुत बढ़िया बात हो गई। कह रहा वो तो सब ठीक है, पर मुझे बता मुझे धक्का किसने दिया। तो ये जो एंटरप्रेन्योर बनने वाली सिचुएशन है वो धक्के वाली ही है। इसमें अगर एक बार आप चले गए, कूद गए, तो थोड़ा स्ट्रगल जरूर है, लेकिन यू विल बी द किंग, राइट? सो विश यू ऑल द बेस्ट। Understand what the startup is going to do, what are the stages. So Dr. Pachauri ji will be giving you some briefs. Thank you very much and congratulate the department and you. Thank you. To understand, actually there are three questions, basic questions. So what actually the startup? How we can start our startup, and how many steps are there to make our startup a successful one? I will answer all of these three questions one by one. So very first question, what actually a startup is? और पूरे सिनेरियो को समझने के लिए we should have at least one question and one answer so that we can analyze and understand what actually we are discussing over here. So just take an example of Grooforce. तो पहले थोड़ा सा Grooforce की स्टडी को देखते हैं। Grooforce was there and serving us by more than 3-4 years approximately. Or in March 2020, whenever the pandemic starts, Grooforce was serving us, but the service time is approximately 15-20 days. But that was the time which was actually a challenge for the Grooforce. उस टाइम में उनको ये समझ में आया कि we have to clear 2-3 stages, 2 or 3 more stages, so to make our startup a very successful one. उन्होंने क्या स्टार्ट किया? After getting the entire study of the market and funding from the investors, they started serving you within a committed time period, within half an hour, 30 minutes, 10 minutes delivery, and they were giving the advertisement of this
मिनट डिलीवरी। कितने लोगों को पता है कि रूफर्स की 10 मिनट डिलीवरी हुआ करती थी? किसी को पता है? जस्ट रेज योर हैंड्स केस यस। नाउ द नेम चेंज्ड, रूफर्स इज नाउ ब्लैंकेट और डिलीवरी टाइम क्या है आज की डेट में? 15 मिनट। लेकिन इस बीच में आपने कोई एक चीज और नोटिस किया कि ग्रूफर्स से ब्लैंकेट बनने का सफर जो अप्रोक्सीमेटली 1 साल रहा, इसमें उन्होंने नई चीज और क्या जोड़ी? Whenever it was groofers, there was no service charges, approximately for 300 more plus rupees order. They were not charging any of their own. But now Blinkit is charging you as 15 rupees for service charges. This is actually a story. ये कुछ ऐसी चीज है कि आपको नशे की लत डालना और फिर आप इतने आदी हो जाओ कि आपको वो 15 रुपए ज्यादा ना लगे और आप उन्हें खुशी खुशी पे कर पाओ या इग्नोर करके पे कर पाओ। दिस इज एक्चुअली द सक्सेस स्टोरी ऑफ एनी ऑफ द स्टार्टअप। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं, व्हाट एक्चुअली स्टार्टअप, मैं 2020 से स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ, थोड़ी सी बस 2 स्लाइड की स्टोरी है ये, यू कैन गो थ्रू इट। कि गूगल हो या कोई भी हो, एक टाइम था जिस टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर वाज देयर फॉर योर विंडोज एंड मोस्ट ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली अराउंड द ग्लोब एक्सप्लोरर वाज इन यूज। और अभी कुछ दिन पहले पता चला आपको ओनली 0.61% ग्लोबल यूजर्स वर यूजिंग एक्सप्लोरर। दैट्स व्हाई गूगल is going to take back this explorer services. अब एक्सप्लोरर की कहानी अंतिम दौर में है और एक्सप्लोरर खत्म हो गया। मालूम है आप में से कितने लोगों को मालूम है? 1 2 3 4 5 6 इतनी बड़ी 55 स्टूडेंट के स्टूडेंट आज एमसीए करने वाले बच्चे, और केवल 6 लोगों को ये पता है कि एक्सप्लोरर खत्म हो रहा है। आप यही स्टेजेस हैं एक्चुअली। जब हम किसी भी स्टार्टअप की बात करते हैं तो उसकी एक लास्ट स्टेज होती है एग्जिट स्टेज। 6 स्टेजेस होती है नॉर्मली। कहीं कहीं आपको 3 स्टेजेस में कहानी मिलेगी, कहीं 6 स्टेजेस में कहानी मिलेगी। करंट सिनेरियो में आज से 7 से 8 साल पहले 2012-14 के आसपास 3 स्टेजेस हुआ करती थी। By 2020 there are 6 stages. What these 6 stages are? Actually previous record 2018 का देखें तो 1.8 मिलियन US डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट था केवल स्टार्टअप्स के लिए, जो हकीकत में 2020 में 1.3 बिलियन था, कम हो गया था क्योंकि 2020 में पैंडेमिक हो गया था। और इस पैंडेमिक में ये डेटा मार्च में रिलीज होता है, राइट? मार्च 2020 में ही पैंडेमिक इंडिया में आया। इन्वेस्टमेंट सडनली डाउन होने थे, फिर भी कितना फर्क है देखिएगा, 0.5 मिलियन डॉलर्स का। और आज ये डेटा अप्रोक्सीमेटली 3 गुना बढ़ चुका है 1.8 के कंपैरिजन में देखा। तो व्हाट आर एक्चुअली द डिफरेंट स्टेजेस? अगर मैं स्टेजेस की बात करता हूं तो राइट, तो हम लोग बात करेंगे न्यू डेटा पर, दैट इज data by 2020. We have to discuss the 6 stages. What are actually the 6 different stages of any of the startup? अब startup की अगर बात करते हैं 6 stages की, तो these are 6 stages on which we have to discuss. Now one by one, what is actually the pre-seed stage? अब pre-seed stage की बात अगर हम करते हैं तो ये होती क्या है? एक्चुअली प्री-सीड स्टेज ये है कि आपके पास क्या है। आप लोगों ने बहुत अच्छे से एलन मस्क की कहानी सुनी, आपने यूएस स्पेस की कहानी सुनी। यूएस में स्पेस एजेंसी नासा के अलावा भी एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है
स्पेस एक्स इंडिया में है, प्राइवेट है नहीं है, आने वाली है, आ सकती है, बहरहाल आने वाली है। 24 में ये लॉन्च हो चुकी होगी, 24 में वर्किंग स्टेज में होगी, आ चुकी है। फिलहाल के लिए आपके लिए इतना बता देता हूं, दिस इज ऑल इन प्री सीड स्टेज। ये सब कुछ प्री सीड स्टेज की कहानी है। 2 दिन पहले इंडियन एयरफोर्स 114 फाइटर जेट प्लेन परचेज करने वाली थी। ये बहुत बड़ी न्यूज थी। कितने लोगों को पता है? और 114 में से 96 फाइटर एयरजेट इंडिया में बनने वाले हैं। इंडिया के ही फाइटर जेट इंडिया की कंपनियां बनाएंगी और इंडियन एयरफोर्स को सेल करेंगी। केवल 18 फाइटर जेट प्लेन्स परचेज होंगे बाहर से। 96 इंडिया में बनेंगे, 114 लेने हैं, तो 18 के डिफरेंस रहता है। एक्चुअली ये क्या है? इंडियन एरोस्पेस और इंडियन स्पेस, इंडियन फाइटर प्लेन्स, इस तरह की चीजें, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जिसके लिए बात करते हैं हम लोग, हकीकत में ये सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। प्री-सीड स्टेज ये कहती है आपके लिए कि आपके पास आइडिया है। अभी अभी डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि यू आर हैविंग एन आइडिया। नदी के किनारे खड़े तो सबसे आइडिया सबके दिमाग में था कि पार कैसे करना है, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि अंदर जहरीले जानवर थे। धक्का किसने दिया? एक्चुअली धक्का देने के बाद क्या हुआ? उसके बाद आपको प्रयास क्या करने थे? अपने जिंदा रहने के प्रयास करने थे। इसलिए आप इतना तेज तैरे के पार हो गए। सेम विद यू, यू आर हैविंग एन आइडिया बट हाउ टू स्टार्ट। और एक बार स्टार्ट हुआ, देन यू आर हैविंग अ फाइट टू सर्वाइवल। और डार्विन थ्योरी हमेशा से सच रही है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। आपके साथ भी यही है। प्री-सीड स्टेज ये कहती है कि जब आपने बीज लगाना है तो वो मिट्टी, पानी, मौसम सब देखना है। आपने अपने आइडिया को अगर फाइनलाइज करना है तो किस प्लेटफॉर्म पर करना है? मार्केट कैप क्या है आपका? मार्केट ऑडियंस क्या है? कैपिटल ऑडियंस क्या है आपकी? टारगेट ऑडियंस क्या है? कैपिटल ऑडियंस एंड टारगेट ऑडियंस आर टू डिफरेंट थिंग्स। टारगेट ऑडियंस मेरा ऐसा प्रोडक्ट है कि सबको टारगेट कर रहा हूं। मैंने एक नया मोबाइल फोन बनाया, मैं चाहता हूं मैं सबको बेच दूं, दैट इज माय टारगेट ऑडियंस। लेकिन कैपिटल ऑडियंस, मेरा मोबाइल इतना कॉस्टली है कि वो केवल वही ऑडियंस खरीद पाएगी जो कैपिटलाइज्ड है आज की डेट में। एप्पल सारे लोग क्यों नहीं खरीद लेते? हम सब एंड्रॉइड पर क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज हम कैपिटल ऑडियंस में नहीं आते। टारगेट ऑडियंस हमारा भी सपना जरूर है कि यार एप्पल लेना है, आईफोन होना है, ऑडी लेनी है, मारुति में क्यों चलना है? दैट इज प्री-सीड स्टेज। कि मुझे अपने उस आइडिया को लगाने के लिए क्या चाहिए, दैट इज प्री-सीड। बीज बोने से पहले की कहानी। अब बीज तो बो दिया, देन आई एम नीडेड अ सीडिंग स्टेज। अब बीज जब बो दिया तो आपकी मजबूरी है कि वो बीज 100 रुपए का खरीदा था, 100 रुपए बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने उसकी देखभाल नहीं की। या तो 100 रुपए की कुर्बानी कर दो। यानी कि तुम्हारा जो आइडिया था, अगर प्री-सीड स्टेज में ले गए आप और वो आपने कर दिया और सीड स्टेज को आप नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो आइडिया कोई ना कोई, इस दुनिया में आइडिया लेने वाले बहुत हैं, चुराने वाले भी बहुत हैं। वो आइडिया किसी दूसरे को क्लिक हो जाएगा। आपने आईपीआर फाइल नहीं किया है या कर भी दिया है, तो अगर आपने आइडिया की फॉर्म में फाइल किया है तो 1 साल के अंदर आपको प्रोटोटाइप की फॉर्म में फाइल करना है और 18 महीने 2 साल के अंदर आपको उसको एग्जाम की तैयारी करनी है, 5 साल में एग्जाम देके अपने हाथ में पेटेंट लेना है। अगर आपने नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने के बाद वो ओपन प्लेटफॉर्म पर है, कोई भी आइडिया ले सकता है वहां से। करोड़ों आइडियाज हैं वहां पर ऐसे जो रिजेक्शन की फॉर्म में जा चुके हैं। अगर आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं, आइडिया अपने लिए बना सकते हैं कुछ। नोबडी कैन चैलेंज यू, क्योंकि वो रिजेक्ट हो चुका, बंदे ने पेपर नहीं दिया, पेटेंट उसको नहीं मिला है। आप उस आइडिया को जरा सा चेंज करिए, नया पेटेंट डालिए अपना पे,
कॉपीराइट डालिए, अपना स्टार्टअप स्टार्ट डालिए। तो सीडिंग स्टेज मीन आपने जो बीज लगाया था या तो 100 रुपए का बीज कुर्बान कर दो या उस बीज की देखभाल कर दो। अब आपकी मजबूरी है कि उसकी देखभाल करनी है तो फिर इतनी तेज 47 डिग्री टेम्परेचर में आपको फिलहाल वो पौधा है छोटा सा, आपको उसके ऊपर छत भी देनी होगी छोटी सी, छोटा सा इन्वेस्टमेंट ही सही, 100, 200, 500 रुपए का इन्वेस्ट आप उसे बचाने के लिए करो। तो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट 500 रुपए हो चुका है, लेकिन वो पौधा जो बीज था वो इतना बड़ा हो चुका है। इट मींस प्रोटोटाइप तक आप बना चुके हैं। बीज को छोटा पौधा बनाना दैट इज अ प्रोटोटाइप। पेड़ नहीं बनाया, कल नहीं दिया उसने। तो आपका जो आइडिया था उस आइडिया को जब प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर दिया आपने, तो प्रोटोटाइप इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट बट दैट इज नॉट सेलेबल। दैट इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि ये बनेगा तो इससे खूबसूरत होगा, लेकिन वर्किंग ऐसी होगी। वी कैन चेक इट आउट, वर्किंग प्रोसीजर, वर्किंग मैकेनिज्म एंड द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दैट। मैंने वो वर्किंग मैकेनिज्म देखा। तुम लोगों ने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, तुमने कोई एक आइडिया लिया, तुमने प्री-सीड स्टेज तक गए, प्रोटोटाइप बनाया। अब उस प्रोटोटाइप को यू हैव टू शोकेस। दैट्स व्हाई यू आर एंटरिंग इनटू द अर्ली स्टेज। अब आपकी पहली कहानी शुरू होती है यहां से, क्योंकि अब आप क्या चाहते हैं? अब आप हकीकत में ये चाहते हैं कि जो आपका प्रोटोटाइप है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में मार्केट में जाए, लेकिन उसके लिए आपको पूरी इंडस्ट्री सेटअप करनी है। इंडस्ट्री सेटअप के लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, टेक्नोलॉजी आपके पास है, मैन पावर चाहिए। आपके पास है, वेल एंड गुड, अपना लगाइए, अपनी जगह लगाइए, मैन पावर अरेंज करिए, मार्केट कैप्चर करिए, मार्केटिंग के बंदे चाहिए, फाइनेंस के बंदे चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। 10-20 लोगों की टीम चाहिए आपको, नहीं है, लेकिन आइडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने क्या किया, मैं आप लोगों को भी एक आइडिया दे रहा हूं कि आप अगर ऐसा कोई भी आइडिया बना लेते हैं, ऐसा कोई प्रोटोटाइप बनाते हैं, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करिए। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है अपनी चीजों को शोकेस करने के लिए, ऐसे आप अपनी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करिए। कॉलेज के स्टाफ, फैकल्टी सबको बुलाइए और सबको वो पूरा डेमोन्स्ट्रेट करिए। उससे क्या होगा, अगर आपका आइडिया मुझे क्लिक कर गया तो मैं क्या कहता हूँ, चलो 50,000 रुपए मैं लगाता हूँ, करो आगे। बिजनेस आइडिया तुम्हारा, टेक्नोलॉजी तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, पैसा मेरा। अगर आपको ऐसे 10 इन्वेस्टर मिले 50,000 वाले, 5 लाख मिल गया, काम शुरू हो गया। अब जब ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होता है तब क्या हो? अब यहां पर एक शर्त रखी जाती है। पहले आप लोगों ने जे बिजनेस वगैरह पे कभी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर सेशन देखा है? मेरा बेटा छोटा है भी, वो देखता है क्या होता है वहां पर भी सेम कहानी चलती है। इन्वेस्टर्स को आपको अपनी चीज के लिए राजी करना है, और इन्वेस्टर किसी की जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। वरना आप खुद बताइए, आज की डेट में आप 1 किलो आलू लेने जाइए, 20 रुपए किलो आलू मैं मान लेता हूं, राइट? आप उसे 20 रुपए देंगे, 1 किलो आलू लेंगे तो क्या उसमें से अगर 1 किलो आलू में मान लीजिए 10 आलू चढ़ते हैं, तो 1 आलू की कॉस्ट कितनी है? 2 रुपए। 2 आलू खराब ले लोगे? क्यों? क्योंकि तुम्हें वहां दिखाई दे रहा है कि 4 रुपए आलू खराब है। दुकानदार चाहेगा वो सड़े आलू तुम्हारी उसमें जाट डाल देना, वो अपनी मर्जी से भी कुछ आलू चढ़ा देता है, फिर आप दोबारा छांटते हो कि कोई गलत तो नहीं चढ़ा दिया उसने, क्योंकि एक की कॉस्ट भी 2 रुपए पे हो रही है। The same thing is over here in the early stage. आपको किसी दूसरे की जेब से पैसा निकलवाना है, दुकानदार आपकी जेब से पैसा निकलवाना चाहता है, 2 रुपए वो फ्री के कमाना चाहता है, उसे वो फेंकना नहीं चाहता, क्योंकि उसे वो आलू फेंकना है। उसके बदले अगर उसे 2 रुपए मिल रहे हैं तो क्या बुरा है? वो उसका माइंडसेट ये है, सेम माइंडसेट यू शुड हैव। आपको दूसरे इन्वेस्टर की जेब से पैसा लेना है, क्यों? क्योंकि आपने देखा अर्ली स्टेज आपकी कैपिटलाइजेशन ये बताती है कि पूरे
6 स्टेज को देखने के लिए, इस अर्ली स्टेज को कंप्लीट करने के लिए आई एम नीडिंग 10 लाख रुपीज एज अ वेरी इनिशियल फंड। बिना 10 लाख के मैं शुरू नहीं कर सकता। आपने इन्वेस्टर्स देखे, किसी ने 50,000 दिए, किसी ने 1 लाख दिए, एंड यू हैव कंप्लीटेड योर टारगेट, आपको 10 लाख रुपया मिलता है। देन यू हैव टू गो थ्रू द ग्रोथ स्टेज। नाउ अब आपको ग्रोथ करनी है, क्योंकि अब आपको दिखाई दे गया कि नाउ आई एम हैविंग 10 लाख रुपीस विद मी, नाउ आई हैव टू ग्रो। आपने उस पैसे से मशीनरी मंगाई, सब कुछ मंगाया, क्योंकि इन्वेस्टर क्या देखेगा, अगर मैंने 50,000 रुपए, मैंने 1 लाख रुपए दिए, आपके एचओडी ने 1 लाख रुपए दिए, आपकी फैकल्टी ने 1 लाख रुपए दिया है, तो हम क्या देखेंगे, हम वीकली विजिट, फोर्टनाइटली विजिट, ट्वाइस इन अ वीक विजिट, अब क्या प्रोग्रेस है। हमारा प्रेशर ये होगा भाई जल्दी प्रोडक्ट लाओ, क्योंकि 1 लाख रुपए का ब्याज फ्री में खा रहे हो। तुम भी पूरी मेहनत करोगे यार जल्दी से जल्दी मार्केट में जाए तो मेरी रिकवरी शुरू हो, क्योंकि जितने दिन डिले कर रहे हो उतने दिन अपनी टीम को भी पेमेंट कर रहे हो। आपने मशीनें मंगाई, इंस्टॉलेशन लगाया, टेक्नीशियन बुलाए, 1 महीने में प्रोडक्ट इज इन द मार्केट। अब आपका नेक्स्ट सिनेरियो क्या होता है, पहला मार्केट कैप्चर किया आपने, 1 लाख रुपए का मार्केट में माल डाला। सेकेंड स्टेप इमीडिएटली आपके दिमाग में होता है 1 लाख के कम से कम 60% पैसा तो वापस आ जाए मेरे पास, मेरी पेमेंट तो आए वापस। मार्केट का कस्टमर, मार्केट में कंज्यूमर क्या कहता है, कंज्यूमर इन द सेंस आपका जो डीलर है, आपका जो शॉपकीपर है जिसने आपका माल परचेज किया है, सर 50,000 का माल और दे दो, जैसे ही लेके आओगे पिछली पेमेंट देता हूँ, वो आपकी अगली माल लेने की कोशिश में होता है। हर बंदा, बिजनेस का पहला असूल है सामने वाले की पॉकेट से पैसा निकालना है, कैसे भी कैसे भी। बाय होप एंड क्रुक आपको वो पैसा सामने वाले के पॉकेट से अपनी पॉकेट में चाहिए, आपको भी चाहिए, उसको भी चाहिए। आप चाहते हैं दुकान पेमेंट उठाई, उसको फिर से डाला, जिन जिन से आपने पेमेंट ली हुई है उन सबको अपने कमिटमेंट है कि भाई जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा 20% मेरा, क्योंकि टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर माइन, बाकी का 80% शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसका जैसा शेयर आपने डिवाइड कर। जब मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, भाई मैंने तो सिर्फ पैसा दिया है, बाकी बस मैं केवल ये देखने गया हूँ कभी कभी कि भाई आपने पैसे को गलत जगह यूज तो नहीं कर रहे हो, आपने जिस काम के लिए पैसा लिया है वहीं लगा रहे हो, अदरवाइज पैसा डूबेगा तो नहीं। हर इन्वेस्टर केवल ये देखने गया है कुछ टाइम, और जैसे ही कुछ टाइम बाद मेरे पैसे का रिवॉर्ड मेरे को आना शुरू हुआ, इट मींस यू आर इन अ ग्रोइंग स्टेज एंड यू आर गेटिंग अ ग्रोथ। मुझे दिखाई दिया कि मेरा 1 लाख रुपया अगर 3 महीने में आपने मुझे 40,000 का प्रॉफिट दे दिया, इट मींस 3 महीने में 40,000, यानी कि 12 महीने में देखूं तो मेरे पास 1,60,000, 160% का रिटर्न 1 साल में मिलने वाला है मुझे। इससे अच्छा बिजनेस नहीं हो सकता, कहीं से मुझे इतना ब्याज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक्सपेंशन फेज, बस यहाँ एक्सपेंशन फेज आ गया। एक्सपेंशन फेज क्या करेगा कि जब मुझे इतना इंटरेस्ट आप दे रहे हैं कि मैंने 3 महीने में 40,000 कमाया है, तो 6 महीने के अंदर 80,000 रुपए मिल गया, यानी कि मेरे को 80% रिवर्ट आ चुका है। अब आपकी डिमांड क्या है, मार्केट में ग्रोथ बढ़ चुकी है, आपकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, भाई और ज्यादा चाहिए। आपने अपने इन्वेस्टमेंट 2 तरह के हैं, एक्सपेंशन इन द बिजनेस एज वेल एज एक्सपेंशन इन योर टेक्नोलॉजी, क्योंकि तब तक आप ये समझ चुके हैं कि मार्केट का कस्टमर क्या मांग रहा है। एक ही तरह के मॉडल पे कस्टमर कब तक रहेगा? Marketplace where there is no competition at all looks like a easy task. But if we want to enter in a place where already something is existing, then what would be the challenges or what would be the steps we need to modify in this particular 6 stages? Very good question. Please, what's your good name? Sir, Sankalp Agnihotra. संकल्प। संकल्प, तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब देखो एक छोटी सी कहानी से देता हूँ पहले। एक व्यापारी था जो चप्पलों का व्यापार करता था। वो एक बार उसने अपने एक मुनीम को एक गांव में भेजा जहां लोग चप्पल नहीं पहनते। उससे जब रिपोर्ट मांगी मालिक ने, तो उसने आगे रिपोर्ट दी कि साहब वहां तो कोई चप्पल पहनता ही नहीं है, हमें वहां सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होगा कि दिस इज एक्चुअली द थिंग व्हिच कैन हेल्प यू आउट, दैट्स व्हाई इस मार्केट में कोई फायदा नहीं।
दूसरे को भेजा, संकल्प को भेजा। एक्चुअली संकल्प में जाके वहां मालूम क्या देखा कि यहाँ कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। तो इज द इजीएस्ट मार्केट वेयर वी कैन कैप्चर द मार्केट, क्योंकि यहाँ हर बंदे को मैं बेच सकता हूं अपनी चप्पल। तो दिस इज एक्चुअली दैट क्वेश्चन कि हाउ आई एम गेटिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक ग्लास में आधा ग्लास पानी है, व्हाट आई एम सेइंग, हाफ फिल्ड और हाफ एम्प्टी। किसी भी ऐसे मार्केट में एंटर करना जहां कभी कंपटीशन ही नहीं है, इफ यू एंड योर टीम इज कैपेबल एनफ टू demonstrate and to give your idea into the mind of the public कि yes, this is the product which is beneficial to you, that is the greatest market for you। लेकिन जहां लोगों को आपकी चीज के बारे में पता ही ना हो, वहां एफर्ट्स करना या ऐसी जगह एफर्ट्स करना जहां मार्केट पहले से है, लोगों को पता है उस चीज के बारे में, लेकिन आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से बेहतर है, then survival which is easy। It depends on your zeal to fight, कि आपके अंदर कितनी ताकत है लड़ने की। ऐसी जगह जहां आप रेस में अकेले हैं, या ऐसी जगह जहां आपके कंपटीशन में तो है, लेकिन you are having a zeal, you can fight and you can win। This is your zeal। Anyone else? I think I answered your question। Anyone else? Thank you। I request HOD sir to have word of thanks. First of all, I would like to thank Dr. Kachori for giving us such a nice time and just sensitize our student for the stages। जैसे डायरेक्टर सर ने भी कहा था कि जो है सबसे बड़ी चीज़ की जो है हिम्मत करना उस चीज़ के लिए, जो चीज़ आप अगर करना चाह रहे हो और नहीं करना चाह रहे तो कोई धक्का दे रहा है तो जबरदस्ती आपको करनी पड़ रही है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि जैसे संकल्प ने क्वेश्चन पूछा कि हम कोई अगर नई चीज़ करते हैं तो डेफिनेटली द एडवांटेज इज दैट कि वी हैव सम न्यू थिंग जो अभी तक किसी का कंपटीटर कोई है ही नहीं मार्केट में। बट इट इज ऑल्सो ए डिफिकल्ट टास्क जस्ट टू थिंक अबाउट एनी न्यू थिंग विच इज एक्चुअली न्यू, कि जिसका कंपटीशन मार्केट में नहीं है। इट इज योर बेनिफिट, जैसे कि सर ने बताया कि इनिशियली वी हैव ओनली 3 नंबर ऑफ कार्स लाइक द फिएट, एम्बेसडर एंड इम्पाला। कंपटीशन नहीं था, इन लोगों ने जो अपनी मोनोपोली चलाई वो चला सकते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम इनको पता था कि कोई कंपटीशन नहीं है। अब चीज केवल दो ही होती है, या तो आपकी क्वालिटी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से अच्छी हो तो आपका स्टार्टअप सरवाइव करेगा, या फिर आप उस चीज को सिमिलर फीचर्स के साथ लोअर कॉस्ट में प्रोवाइड करवा रहे हैं मार्केट में तो सरवाइव करेगा। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए कि मैंने अगर कोई चीज स्टार्ट की है तो मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं उसको लास्ट तक लेके जाऊंगा। मुझे लास्ट वाला स्टेप जो सर ने दिखाया ना, एग्जिट फेज, मुझे कभी भी अपने स्टार्टअप के लिए एग्जिट फेज नहीं चाहिए। कुछ भी होगा और डेफिनेटली है कि स्टार्टअप रनिंग इज नॉट सच ए सिंपल टास्क, इट इज मोर रिस्पांसिबल व्हेन यू आर जस्ट डूइंग जस्ट लीडिंग सम स्टार्टअप। आप कहीं जॉब कर रहे हो तो क्या होता है, 9 to 5 ऑर्गेनाइजेशन जाने 24 घंटे उसने क्या करना है। हमने तो केवल क्या करना है, 9 o'clock एक पंच करना है और 5 o'clock एक पंच करना है। उसके बाद रात में ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। कोई कॉल भी आएगी तो हो सकता है हम साइलेंट मोड में डाल देंगे या फिर जो है फ्लाइट मोड में डाल देंगे। बट स्टार्टअप जिसका होता है उसके दिमाग में रात में भी जब वो सो रहा होता है ना, तो हमेशा वो अपने स्टार्टअप के लिए ही सोचता है कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ। जैसे सर ने से बताया ग्रोइंग फेज, कभी भी अगर आपने कोई स्टार्टअप या कोई चीज स्टार्ट कर भी दी, अगर आप उसको रेनोवेट नहीं करना चाहोगे, उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहोगे, अगर ये सोच के चलोगे कि जो आप दे रहे हो दैट इज द ओनली सॉल्यूशन व्हिच यू कैन जस्ट गिव टू योर कस्टमर्स, ठीक है, उनका फीडबैक नहीं लोगे। जैसे कुछ चीज ऐसी है रिलेटेड जो शायद मेरे क्लास में भी डिस्कस की है कि आप अगर ये सोच के जरूरत है जो भी आप जो दे रहे हो किसी को ना वो सबसे बेटर है, तो आप आंख बंद करके जी रहे हो। आपको उसका फीडबैक लेना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि हमेशा फीडबैक के थ्रू क्या होता है मैकेनिज्म की, अगर आपको लगता है कि कस्टमर कुछ और डिमांड कर रहा है और अगर मैं दे सकता हूँ, हो सकता है मैं ना भी दे सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने प्रोडक्ट में वो चीज डाल दूं। अगर आपको जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कभी आपको एग्जिट फेज में नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यू आर जस्ट वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम टू टाइम यू आर टेकिंग द फीडबैक कि भाई क्या मैं जो आपको दे रहा हूँ वो आपकी नीड को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो मैं वो चीज करूंगा जो आपकी नीड को पूरा कर दे, ठीक है। जैसे
इन्वेस्टर क्यों आउट हुए, उसका रीजन ये था कि उन्होंने अपने स्ट्रक्चर में कभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया। जो स्ट्रक्चर था, क्या ये भी कहूंगा कि स्ट्रक्चर काफी ऐसा था कि जिसमें लगता था कि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर कोई गाड़ी है तो अभी भी वो लगता है कि सर वो केवल आपकी एम्बेसडर ही थी, जिसके ऊपर नीली या लाल बत्ती अगर लगी हुई है तो लगता था कि हाँ भाई कोई एडमिनिस्ट्रेटर जा रहा है इसके अंदर, जो है ना, चाहे कितनी गाड़ी अब तक भी आ गई लेकिन एम्बेसडर की वो जगह नहीं ले पाई। लेकिन फिर भी कुछ चीजों में थी जिसमें उनको अनाउंस करना था अपनी चीज को, जिससे कि वो आज भी सर्वाइव करती है। और वैसे गुड न्यूज ये है कि एम्बेसडर शायद फिर से मार्केट में कुछ इनोवेशन के साथ आने वाली है उस चीज के लिए, क्योंकि इसका मतलब मार्केट में जो कस्टमर्स हैं उसकी कमी को अभी भी महसूस कर रहे हैं, अदरवाइज दोबारा एम्बेसडर लौट के कभी ना आती। तो ये है कि आपको हम हमेशा सेंसिटाइज इस चीज के लिए करते हैं। जैसे डायरेक्टर सर ने कहा कि सबसे पहले जो हिम्मत करने वाला है, और ये चीज हमेशा याद रखो, जैसे इसने कहा ना कि नया सॉल्यूशन, सबसे पहले जो सोचता है ना उस सॉल्यूशन को, प्रॉब्लम्स आपके आसपास ही होती हैं। इफ यू कैन जस्ट एबल टू गिव द न्यू सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, तो आप हिट हो जाओगे। और कहीं पर ऐसा है कि हमने देख लिया कि भाई ओवर चल रही है, कंसेप्ट तो सारा सबको पता है ना, एक में और ओवर की जगह ओवर बन डालूंगा, उसमें सेम चीज करूंगा, सेम ऐसे ही करूंगा। तो फिर अब आपको अगर एग्जिस्टिंग के साथ कंपटीशन करना है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या चीज एक्स्ट्रा आप उसको दे रहे हो कस्टमर को, जो कि ओवर या फिर आपका ओला नहीं दे पा रहा है। ठीक है। और इनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपका ये है कि आजकल ज्यादातर जो है इनमें जितने भी लोग यूज कर रहे हैं ओवर या ओला, बुकिंग करते हैं, सबसे पहले तो बैक कॉल आती है ना, वो पूछता है जाना कहाँ है, यानी कि सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट हो रहे हैं उसमें, वो कैंसिल कर देता है बुकिंग को। ठीक है। अगर आप सिमिलर सॉल्यूशन अगर कोई एग्जिस्ट करा रहे हो तो यू विल हैव टू एंश्योर दैट आई एम जस्ट गिविंग यू द 101% गारंटी दैट कि अगर आपने इस पे बुक कराया, अगर बाय चांस आपका कैंसिलेशन ड्राइवर की तरफ से होता है तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारी कंपनी आपको कुछ ना कुछ पे बैक देगी, ये सोच के कि भाई हमारी गलती थी, भाई हमारा ड्राइवर है चाहे कोई भी हमारा टीम मेंबर है ना, उसकी वजह से भी अगर आपको कोई गलती होती है तो क्या हुआ कि सिंपल कि वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ऐसे तो बेटर यही है कि नया सॉल्यूशन अगर आप सोचते हो तो नया सॉल्यूशन में तो हमेशा आप हिट रहोगे, लेकिन कभी भी सॉल्यूशन सोचो तो हमेशा आगे तक का सोचो इस चीज का। जैसे सर ने कहा ना कि 6 स्टेप्स, ये नहीं कि हम 1 बाय 1 स्टेप सोचेंगे, पहला स्टेप हमने कर लिया, अगर आप जिस दिन सोच रहे हो तो बस लास्ट वाला स्टेप मत सोचो जो एग्जिट है, वो नहीं करना आपने। लेकिन 5 स्टेप्स जो है ना उसके लिए डे 1 से आपको सोचना पड़ेगा कि 5 स्टेप्स अगर हमने रिपीट करने हैं तो मुझे फेज बाय फेज प्लानिंग करनी पड़ेगी। लाइफ साइकिल होती है ना सॉफ्टवेयर में, तो ऐसा तो नहीं होता कि केवल हम इनिशियल करते हैं। तो इस चीज के लिए दैट इज द मेन पॉइंट। तो जस्ट थिंक अबाउट योर स्टार्टअप। जैसे पिछले वाला हमने सेशन जो किया था लीगल एंड एथिकल का, उसमें कुछ बच्चे आए थे मेरे पास कि सर आई एम हैविंग ए आइडिया, ठीक है, जैसे अनुज था, 1-2 और भी थे जो करके, तो केवल सोचो मत, कुछ करो। So again, thank you all the participants and also again the Dr. Pachori for just giving us such a nice time and just sensitize our student, or maybe we can have in the future, in the upcoming semester, maybe 2 or 3 startups with the help of Dr. Pachori. Thank you, sir.